everyone, I'm Marima Khanam and welcome back to Balaji Online Classes. I'm once again with you to illustrate the third chapter of your Real English book, and the chapter's name is A Wise Lesson. Folktales are stories which are passed down from one generation to another by word of mouth. Through these tales, the ethics of the culture are taught to the young and the old. This is also a Jewish folktale. Let's read it and understand it. In a town on a remote island lived a couple where the man was a God-fearing man and his wife did not have children, could not have children. One day, however, she got pregnant and the man got very happy. He started rejoicing and he spoke to his wife. उसने अपनी वाइफ से कहा, You will give birth to my son. He'll be the comfort of our soul, and we will educate him, bring him up well, and he shall inherit my good name and increase my renown. उसने कहा कि तुम मेरे बेटे को जन्म दोगी और वो मेरे नाम को रोशन करेगा, हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे. Thus spoke the happy potential father. और उस फादर ने खुशी में ये सब अपनी वाइफ से कहा. तभी उसकी वाइफ ने कहा, You speak foolish words. तुम जो कह रहे हो वो बहुत गलत कह रहे हो. तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे बेटे को जन्म दूंगी और मैं तुम्हारी बेटी को जन्म नहीं दूंगी. ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें बेटी हो. तब क्या करोगे? You shouldn't boast and leave everything on God. Whatever he does is good. Who controls? She says, God controls our destinies. It may befall you as it once befell a certain dervish. उसने कहा कि कुछ भी हो सकता है आगे जाके, और जैसे कि एक दरविश के साथ हुआ था वैसा हमारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है. जैसे तुम ये बोस्टिंग कर रहे हो और आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में बोल रहे हो जो कि अनसर्टेन है और हमें पता ही नहीं है, सिर्फ किसी को पता है, गॉड को पता है. When her husband asked her what had happened to that dervish, she told him the story. फिर उसके हस्बैंड ने पूछा कि उस dervish को क्या हुआ था, तो उसने उसको पूरी कहानी सुनाई. There was once a dervish in the service of king. वो किंग के वहाँ काम करता था और किंग उसे रोज एक केक और थोड़ा सा शहद दिया करता था, हनी दिया करता था डेली. The dervish used to eat the cake and put the honey into a jar. वो केक खा लेता था और उसके पास एक जार था, वो हनी उसमें रोज डाल दिया करता था. एक दिन क्या हुआ, उसका जो जार था वो हनी से फुल हो गया और उस वक्त हनी बहुत कॉस्टली हुआ करता था. तो उसने सोचा कि अगर मैं हनी को बेचूंगा तो मुझे इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा. और फिर उसने बोलना शुरू किया, आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड. और मैं ना उससे गोल्ड खरीदूंगा. देन बाई 10 sheep all of which is going to give birth to lambs. तो उसने कहा मैं 10 sheep खरीदूंगा, उसके बाद वो बहुत सारे lambs को पैदा करेंगी और इस तरह मेरे पास बहुत सारी sheeps हो जाएंगी, all of sheep हो जाएंगी, all of which is going to give birth to lambs so that in the course of 1 year I am going to have 20 sheep. उसने कहा कि एक साल में फिर मेरे पास 20 sheep हो जाएंगी. Then for sure their number will steadily increase and in 4 years I shall be the owner of 100 sheep. और उसने कहा कि 4 साल में मैं बहुत सारी sheep का ओनर हो जाऊंगा. फिर मैं एक काऊ खरीदूंगा and an ox and acquire a piece of land. फिर उसने कहा कि मैं काऊ खरीदूंगा, ox खरीदूंगा और मेरे पास मैं एक लैंड भी खरीदूंगा. My cow will give birth to calves. और इसी तरह उसने कहा कि मेरी जो cows होंगी वो it will give birth to calves, और ox भी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, मेरे पास plowing land भी होगा, while the cows will provide me milk, और मुझे cow से milk भी मिलेगा. In 5 years time the number of cattle will have increased considerably. उसने कहा कि 5 साल के टाइम में मेरे पास बहुत सारे कैटल्स हो जाएंगे, फिर मैं बहुत अमीर इंसान बन जाऊंगा. I shall then build a magnificent house. फिर उसने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा सा घर बनवाऊंगा और फिर शादी करूंगा एक ब्यूटीफुल लेडी से.
नोबल डिसेंट लेडी से, शी विल bear me a son, और वो मेरे बेटे को पैदा करेगी, और robust and beautiful child, और वो बेटा मेरा बहुत ही सुंदर होगा. A lucky star will shine at the moment of his birth, और वो एक ब्लेसिंग की तरह होगा हमारे लिए. एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम, और वो मेरा नाम रोशन करेगा. Should he, however, refuse to obey, I will beat him with a stick. और उसने कहा, और अगर वो मेरा कहना नहीं मानेगा, या मुझे जो मैं उसे कमांड करूँगा या ऑर्डर दूंगा वो रिफ्यूज़ करेगा, तो मैं उसको छड़ी से मारूंगा, स्टिक से मारूंगा. और फिर क्या होता है, वो सो रहा होता है और ये सब सोच रहा होता है, वो ड्रीम देख रहा होता है. उसी वक्त उसने अपनी छड़ी उठाता है. उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो सच में ये कर रहा है, और छड़ी उठाता है. वो बहुत तेज से उठा के मारने वाला होता है, तभी उसकी छड़ी जो जार होता है हनी का, उस पर लग जाती है और जार फूट जाता है और हनी पूरा बह जाता है. उसी वक्त उसका ड्रीम टूट जाता है, उसका ख्वाब टूट जाता है. तो इसी तरह ये स्टोरी वो अपने हस्बैंड को सुनाती है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, और हमें बोस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें हर चीज़ को गॉड के ऊपर छोड़ना चाहिए. बिकॉज ही हैज़ ओनली क्रिएटेड अस, और उसी ने हमारी डेस्टिनी को लिखा है, और आगे हमारे साथ क्या होने वाला है वो हमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ गॉड को पता है. इसीलिए हमें इस लेसन से, डर्विश की कहानी से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी आगे के बारे में नहीं बोलना चाहिए. Remember the words of King Solomon, who said, "Do not boast yourself, for you do not know what will happen to you next." हमें बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, हमें आगे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें किसी को भी नहीं पता है कि हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है. So you should also not boast, और क्योंकि हमें, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या होगा. जो भी ऊपर वाले ने लिखा है वही होगा, और हमें वैसी ज़िंदगी जीनी होगी, उसे एक्सेप्ट करना होगा. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एक्सरसाइजेस. Download the exercises from School Mitra and start doing your work in your fair copy, and start learning it also. Give time to your studies. As you used to come daily, every day, you used to stay 7 hours in the school. Give some time to your studies, because we are all locked up in the house. We shouldn't waste it. Study nicely, and we are all with you. So till then, take care of yourself. Bye bye.